पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वेरियस सेंटेंस विद द टाइप्स ऑफ राइटिंग, और उसमें हमने देखा कि साइंटिफिक राइटिंग क्या होते हैं, एंड देन कोलोकियल राइटिंग क्या होते हैं, एंड देन along with that we have also seen about legal writing. Okay, so अभी इस वीडियो में we will see about business letter. Business letter क्या होता है? Business letter is a letter from one company to another. एक कंपनी से दूसरे कंपनी को जो लेटर, जो भी कम्युनिकेशन होता है, हम उसको बिजनेस लेटर बोलते हैं. वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. बिजनेस राइटिंग इज़ कम्प्लीटली अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इट इज़ नॉट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? उसमें सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो बहुत फ्रेंडली होता है. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी हम उसको बोल सकते हैं. सो बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस जो लेटर होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता है. जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखते हैं तो वो ऑफकोर्स कैसे होना चाहिए? फॉर्मल ही होना चाहिए. अगर वो इनफॉर्मल होगा तो बिजनेस प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में हमेशा फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर रेस्पेक्ट. और यहाँ पे सी एंड द कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स और अदर एक्सटर्नल पार्टीज. A business letter is sometimes useful because it produces a permanent written record. Business communication जो business letter होते हैं वो बहुत important होते हैं और वो हमको एक permanent record हो जाता है. बहुत ऑथेंटिकेट होता है, क्योंकि उसमें हम फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करते हैं. तो इसीलिए इट इज़ अ वेरी वेरी गुड authenticated and authorized प्रूफ होता है. और बिजनेस कम्युनिकेशन जब होता है उसमें से क्या होता है? वी गेट द रेस्पेक्ट ऑल्सो. बिजनेस लेटर इज समटाइम्स यूजफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट written record and may be taken more seriously the recipient than other forms of communication. So here यहाँ पे एक example है. John Bravo, he is writing a business letter to a company and he is writing to the person called Miss Jeannie. I'm writing to inform you of our new pricing model effective February 1, 2019. On the 1st of February, we will be switching from an annual billing cycle to the quarterly billing cycle, and this letter contains important information that may impact your organization. After conducting extensive research and receiving feedback from our customers, we strongly prefer a quarterly billing cycle rather than an annual one. So in order to best suit your needs, we have decided to offer this benefit, which will take effect on February 1, 2019. So this letter is simply to notify you of the upcoming changes, and no immediate action is required from you at this time. And we thank you for your continued business. और ये क्या है? This is a formal business letter, and this formal letter is always considered as the important written proof, and it can be used after many years also, क्योंकि written communication, what we have studied, written communication is always authorized because it can be used again and again for the as a strong proof. But verbal communication is not like that. It can't be used because once you hear something from someone, you hear it, either you remember it for some days and then
you forget it. So it can't be used as a proper strong proof. But written communication is not like that. Non-verbal communication, that's the written communication, it's not like that. It can be used again and again as a very strong proof. And especially when you are in business, written communication plays a very important रोल. जब आप बिजनेस में रहते हो रिटन कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिजनेस में रिटन कम्युनिकेशन प्रूफ का बहुत ज़रूरत होता है. एंड हियर a suggestion letter, model of a suggestion letter is given. So what's a suggestion letter? Suggestion letter is written to suggest something useful to a person or company so that they can improve their service or habits. It's a kind of letter where the sender attempts to advise the receiver in the most impressive and influential manner. Suggestion letter is always a kind of friendly letter. अगर आपके पास एक उपाय है, or if you have any idea or something that you can give to the fellow business people, that time you can write the suggestion letter. And when you write the suggestion letter will increase the friendliness between customer and the client. Not only between the customer and the client, it increases the friendliness and the easy way of approach between two people or the group of people. So suggestion letter is written to suggest something useful to a person or company so that they can improve their services or habits. It's a kind of letter where the sender attempts to advise the receiver in the most impressive and influential manner. Impressive way of communication में क्या करता है? It tries to tell to the person. So when you write the suggestion letter, you must use the pleasing वर्ड्स. वहाँ पे वर्ड्स बहुत प्लीजिंग होना चाहिए, बहुत ऑथराइज्ड वर्ड्स या फिर ऑर्डरली वर्ड्स अगर यूज़ करोगे तो जो फ्रेंडलीनेस या फिर जो बॉन्डिंग आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो बॉन्डिंग वहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो पाएगा. सो सजेशन लेटर में फ्रेंडली वर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी होता है. अगर आपका वर्ड्स फ्रेंडली नहीं होता है तो द पर्सन टू whom you want to communicate something, that person will not understand anything that you're willing to tell to him. So that's why it must have the proper authorized word and friendly words. Authorized and friendly words जब होता है तो तब जो ऑपोजिट का पर्सन होता है उनको बहुत अच्छा होता है लिसन करने के लिए और उनको इंटरेस्ट भी हो जाता है जो आप बोलते हैं वो सुनने के लिए. ओके. सो सैम्पल सजेशन लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. और यहाँ पे एक सैम्पल सजेशन लेटर ने दिया है एंड द लेटर इज रिटन टू द स्कूल प्रिंसिपल एंड यू विल रीड आउट द लेटर एंड सी व्हाट इज गिवन इन दैट. एज अ हेड गर्ल, हु इज अ हेड गर्ल? जो एसपीएल होते हैं ना, स्कूल पीपल लीडर, जो लाइक द सुपर सीनियर्स होते हैं स्कूल का, जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या फिर अगर स्कूल में सिर्फ 10th होते हैं तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट क्लास में पढ़ते हैं उसको हम लीडर बनाते हैं, उसको हम हेड गर्ल बनाते हैं. राइट. तो हेड गर्ल का मतलब द स्कूल पीपल लीडर. इट कैन बी द बॉय और गर्ल ऑल्सो. What is their responsibility is they will take care of all the rules and regulations. They will take care of all the grievances. They will bring the grievances and everything to the management. सब जो students का कुछ दिक्कत हो रहा है, उनका कुछ problem हो रहा है तो वो सब क्या करेंगे, वो अब स्कूल मैनेजमेंट को लेके आके बोलेंगे. So that is why they have the school pupil leader like head girl or the head boy.
So here the head girl is writing the letter to the school principal. What is her grievance, or what is her suggestion that she is willing to give it to the They will not sacrifice the quality, but they will sacrifice the As a head girl, I read this letter on behalf of the students of our school to suggest the utilization of the left out area behind our school playground. I understand this area to be a part of our school property, as it lies within our school boundaries. So far it has become a house of so far we have not seen anything beyond weeds growing out there. So with lack of maintenance of this area, it has become a house of variety of insects. Having a productive soil there, we can use the area to develop a greenhouse. This could be a way to impart the knowledge of importance of growing plants and the greenhouse concept from the early classes. On the higher perspective, we can reiterate the same in terms of encouragement towards plantation, botany, and the agricultural science, which has lost its charm and became a stigma constraint to the rural India. This could pave way for the learned people to help agriculture and farming sector, giving increased output. I hope you find this letter of some importance and definitely give a thought in this direction, awaiting your positive response. और यहाँ पे जो लीडर है स्कूल का, जो हेड गर्ल है, वो ऐसे लिखती है कि उनके स्कूल के पीछे जो थोड़ा बहुत जगह है वो स्कूल का ही जगह है, पर वो जगह में बहुत सारा दिन कुछ यूज़ नहीं हो रहा था, जगह ऐसे वेस्ट ही वहाँ पे पड़ा है। तो ये लड़की बोल रही है कि वो जगह को हम क्यों ना एक गार्डन जैसे कि ग्रीन हाउस वहाँ पे बना के वहाँ पे गार्डन प्लांटेशन शुरू करेंगे। और वो शुरू करने से क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा प्लांट्स के बारे में जान लेंगे एंड मेनी थिंग्स दे कम टू नो व्हेन वी स्टार्ट द ग्रीन हाउस प्लांटेशन। और वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे दिन से जैसे वहाँ पे कोई बच्चे खेलते नहीं हैं और वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं हो रहे थे, वो जो ज़मीन था ऐसे सूखा पड़ गया है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारा इंसेक्ट्स आके वहाँ पे ठहरने लगे। तो ये लड़की बोल रही है कि जो इंसेक्ट्स आके ठहरे तो वो प्लेस तो वेस्ट ही हो रहा है एंड इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, थोड़े दिन के बाद डेंजरस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वो प्लेस को अच्छे से एक प्लांटेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जब ऐसे करेंगे तो वहाँ पे उस प्लांटेशन के द्वारा बच्चे जो होंगे स्कूल के बच्चे, उनको बहुत सारा बात पता चलेगा, बहुत सारा बायोलॉजिकली दे स्टार्ट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। सो यही है वो लड़की का सजेशन, और वो सजेशन वो लिखती है अपने प्रिंसिपल को। तो आपने ये लेटर पे देखा है, और ये लेटर इज़ वेरी प्लीजिंग। लेटर में जो भी वर्ड्स वो लड़की ने यूज़ किया है, वर्ड्स बहुत प्लीजिंग होते हैं, प्लीजिंग लगते हैं। और वो लड़की ने इतना अच्छे से प्रोडक्टिवली ये लेटर लिखा, जैसे कि वो पढ़ते हैं तो अच्छे से उनको समझ में आ सकते हैं, इसीलिए दे कैन अंडरस्टैंड। In this one we will see about exercise number 9. So comparative timetable of two students. यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में हम बात करेंगे। कंपैरेटिव टाइम टेबल, कंपैरिजन करते हैं दो स्टूडेंट्स के टाइम टेबल को। और पहला हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट का टाइम टेबल।
पे 6:30 AM, 7:15 AM and everything it is given. First student का टाइम टेबल, स्टूडेंट टाइम टेबल, डे, टाइम एंड देन सब्जेक्ट. 5:30 to 6:30 वो सब्जेक्ट जैसे आपका सब्जेक्ट होता है आप उसके द्वारा आपका टाइम टेबल बना सकते हो. सो इट इज़ अ कंपैरेटिव टाइम टेबल. आई डोंट थिंक आई हैव टू रीड this one and show it to you. तो यहाँ पे पहला स्टूडेंट का टाइम टेबल, आप सॉरी यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए. और यहाँ पे ठीक रह रहा है. सो कंपैरेटिव टाइम टेबल सारे 7 दिन के लिए है टाइम टेबल हमने बनाया है. सो 2 बच्चे का टाइम टेबल यहाँ पे बनाना है और हमने बनाया है. और एक्सरसाइज नंबर 10 देखेंगे. डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन. 2 डिफरेंट पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके बारे में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जानकारी हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे. एंड हियर वी हैव we will see about मदर टेरेसा. तो यहाँ पे हमने पिक्चर भी दिया है मदर टेरेसा की. पिक्चर के साथ आप पढ़ सकते हो. Mother Teresa was born in 1910 in Skopje. Okay, वर्ड थोड़ा डिफरेंट लगता है, हमको भी डिफरेंट ही लगता है. द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया. Little is known about her early life, but at a young age she felt a calling to be a nun and serve through helping the poor. At the age of 18, she was given permission to join a group of nuns in Ireland. After a few months of training with the Sisters of Loreto, she was then given permission to travel to India. She took her formal religious vows in 1931 and chose to be named after Saint Teresa of Lisieux, the patron saint of missionaries. तो मदर तेरेसा कब बॉर्न हुए थे? She was born in 1910 in the place called Skopje, the capital of Republic of Macedonia. मैसिडोनिया के कैपिटल में उनका बर्थ हुआ है. तो उनके जो बचपन के बारे में बहुत कम बातें ही हमको पता है, बहुत सारे बात हमको पता नहीं है. सो बट एट यंग एज, जब वो बहुत छोटे थे तभी शी फेल्ट द कॉलिंग टू बी अ नन एंड सर्व थ्रू हेल्पिंग द पुअर. जब वो बहुत छोटे थे, जब उनके बचपन था, तभी उनका कॉलिंग आ गया है गॉड से. जैसे कि उनका मन में जैसे हम नॉर्मल बच्चे कैसे होते हैं, खेलना कूदना सिर्फ उसमें ही होते हैं, पर मदर तेरेसा का कॉलिंग उनके मन में कुछ और बात चल रहा था. सो बात क्या था? सारे गरीबों जो होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनको हेल्प करना ही उनके मन का इच्छा था. सो एट द एज ऑफ 18 शी वॉज गिवन परमिशन टू जॉइन अ ग्रुप ऑफ नन्स. सो 18 साल में उनका परमिशन था. क्या था? नन्स के ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए. सो बहुत आफ्टर कुछ महीने के बाद उनके ट्रेनिंग के बाद विद द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इनका ट्रेनिंग हुआ था. शी वॉज देन गिवन परमिशन टू ट्रैवल टू इंडिया. इनका जो ट्रेनिंग सिस्टर्स ऑफ लोरेटो के साथ हुआ है, तो उसके बाद इनको परमिशन दिया गया है इंडिया जैसे कि भारत आने के लिए.
शी टुक अ फॉर्मल रिलीजियस वाव्स। तो जो क्रिश्चियनिटी में वाव्स होते हैं, जो नन्स होते हैं, उनका कुछ वाव्स होते हैं, जैसे प्लेज होते हैं ना, वैसे होते हैं वाव्स। इन 1931 and chose to be named after Saint Teresa of Lisieux. Okay, so the patron saints of missionaries. So फिर क्या हुआ? On her arrival in India, she began by working as a teacher. जब वो इंडिया आए थे तो पहले आने के बाद ही उनका जो मकसद था पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए, गरीबों को हेल्प करना ही उनका मकसद था। तो यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली उनको गरीब पीपल को जाके हेल्प करने का चांस नहीं मिला। तो उनको क्या मिला था? उनको पहले एक टीचर बन के काम करने के लिए ही उनको चांस मिला था। However, the widespread poverty of Calcutta made a deep impression on her. तो इंडिया में आके कहाँ गए थे? She went to Calcutta. She was in Calcutta. कलकत्ता में होते तो वहाँ पे बहुत जो पॉवर्टी था, पॉवर्टी मतलब बहुत गरीबी, जैसे कि लोगों को खाना पीना कुछ भी नहीं था, पढ़ाई कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए वो जब ये टीचर थे वहाँ पे, तो ये सब देख के इनका मन में बहुत इच्छा और भी ज़्यादा हो गया कि ये लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए। सो एंड दिस लेड टू हर स्टार्टिंग अ न्यू ऑर्डर कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने स्टार्ट किया है। एक ऑर्डर को इन्होंने स्टार्ट किया है कॉल्ड मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान। ओके, डोनेट करना। The primary objective of this mission was to look after people who nobody else was prepared to look after. So Mother Teresa felt that serving others was a fundamental principle of the teaching of Jesus Christ. तो इनका जो प्राइमरी जो इच्छा था, क्या था? लुक अदर पीपल हु नोबडी एल्स वॉज प्रिपेयर टू लुक आफ्टर। इनको किस तरह के लोगों को हेल्प करने की इच्छा थी? जो लोग होते हैं जिनको कोई भी देखने के लिए नहीं होता है, जो अनाथ लोग होते हैं ना, उनके लिए ही इन्होंने इनका जीवन को पूरा का पूरा समर्पण कर दिया। और ये भी बोल रहे हैं कि मदर टेरेसा फेल्ट दैट सर्विंग अदर्स, दूसरों को सर्व जब करते हैं तो तब जब दूसरों को सर्विंग करते हैं वही होता है जीसस क्राइस्ट का टीचिंग। यीशु मसीह का जो टीचिंग है, दूसरों को जब हम हेल्प करते हैं, दूसरों को जब हम सेवा करते हैं, वही है यीशु मसीह का मकसद, वही है उनका टीचिंग करके बोलते हैं, और वो भी हकीकत ही है। She often mentioned the saying of Jesus, whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Okay, so ये जैसे बाइबल में एक वर्स है, ओके, बाइबल वर्स है, उसमें क्या दिया है? जीसस बोल रहे हैं कि आप जो भी हमसे जो भी नीचे जो भी है, नीचे जो भी खाना बिना कुछ भी नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं है, जो आप उसको जब आप उसको हेल्प करोगे, इट सीम्स दैट यू आर गिविंग टू गॉड, इट सीम्स दैट यू आर हेल्पिंग टू गॉड। सो यही इनका मानना है। So as Mother Teresa said herself, love cannot remain by itself. It has no meaning. Love has to be put into action, and the action is service. तो ये क्या बोलते हैं? Love cannot remain by himself. जो प्रेम होता है वो ऐसे अगर हम किसी के ऊपर नहीं दिखाएंगे, जैसे हम किसी को सर्विस नहीं करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो जो प्रेम होता है, जो लव होता है, हम किसी से दिखाना है, जैसे उनको मदद कर, अगर जब मदद करेंगे, जब हमारा हाथ बढ़ाएंगे दूसरों को मदद करने के लिए, तो तब भी हमारा जो सर्विस का जो इच्छा होता है वो सबको पता चलेगा। यही है मदर टेरेसा का मानना। और दूसरे पर्सनालिटी हम देखेंगे यहाँ पे, इडा सोफिया स्कर्डर। तो ये कौन होते हैं देखते हैं। सो इडा सोफिया स्कर्डर,
In 1890, a 20-year-old American named, okay, in the year 1890, 20 उम्र के एक अमेरिकन नेम्ड इडा सोफिया स्कडर ट्रैवल टू इंडिया। एक 20 उम्र के एक बहुत ही छोटी सी एक टीनेजर क्या किए थे, इंडिया आए थे टू बी विथ हर एली मदर एंड एक्सपीरियंस्ड अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो इनके जो मम्मी थे वो इंडिया में थे, तो ये स्कडर क्या किए थे, वो ट्रैवल करके आए थे 1890 में इंडिया को। और यहाँ पे आके इनका जो जीवन में बहुत सारा चेंज हो गया है। ऑन अ नाइट दैट इज़ नाउ पार्ट ऑफ CMC स्टोरी। और CMC जो है वो अभी तमिलनाडु में वेल्लूर करके एक जगह है, और वो वेल्लूर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC करके एक है। तो वो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। और वो CMC का फाउंडर कौन है, इडा स्कडर। सो CMC स्टोरी, इडा स्कडर का जो लाइफ स्टोरी है वो CMC जो वेलूर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वहाँ से शुरू होता है इनका लाइफ स्टोरी। 3 different men, a Muslim and 2 Hindus, arrived at her family's home seeking emergency help for their wives who were having labor complication। तो क्या हुआ, जब इडा स्कडर इंडिया आए थे तो इनको ढूंढ के 3 पीपल आए थे, 3 लोग आए थे। उसमें एक मुसलमान था और 2 हिंदू था। तो वो इडा स्कडर के घर पे आए थे कुछ इमरजेंसी हेल्प के लिए, क्योंकि उनके जो ये 3 जेंट्स होते हैं ना, उनके जो वाइफ्स होते हैं वो जो लेबर के पेन में कुछ उनको इमरजेंसी का हेल्प चाहिए था, तो इसीलिए वो आए थे। सो वहाँ पे शुरू हुआ इडा स्कडर का CMC फाउंडेशन स्टोरी। सो डॉक्टर इडास विश compassionate quality care for all women regardless of religion or social standing। The 3 young husbands refused the assistance of Ida's father, who was a Christian missionary doctor। तो जब ये आए थे इडा स्कडर को से हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उनके जो वाइफ्स है उनका कुछ प्रॉब्लम था, तो एंड शी वाज रेडी टू हेल्प। तो जब व्हेन शी वाज रेडी टू हेल्प एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, उनके जो पापा थे, उनके पापा भी एक मिशनरी डॉक्टर है और वो भी आए थे हेल्प करने के लिए। पर वो जो 3 व्यक्ति होते हैं उन्होंने उनका हेल्प को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक जेंट्स जो जेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे आके एक लेडी का लेबर या फिर उनका प्रेगनेंसी का कुछ देखना ये नहीं चाहते थे, तो इसीलिए वहाँ पे दे डिड नॉट रिसीव इडास फादर। Okay guys, you can इडास फादर को इन्होंने रिसीव नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ, वो से क्रिश्चियन, और उनके पापा जो थे वो डॉक्टर भी थे, फिर भी ये जो 3 जेंट्स आए थे हेल्प के लिए, इवन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो दे डिड नॉट वांट द जेंट्स टू हेल्प इन द मीन्स ऑफ pregnancy। So because of prevailing caste and gender customs, और उनको जो कास्ट एंड जेंडर का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि पुराने ज़माने में क्रिश्चियनिटी का मतलब ऐसे सोचते कि वो एक विदेशी रिलीजन है। सो इंडियंस दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट द क्रिश्चियंस इन देयर कंट्री।
So the next day she discovered that all 3 women had died. तो क्या हुआ, जब वो आए थे हेल्प मांगने के लिए, तो इडा स्कर्डर को हेल्प करना नहीं आता था क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं थे। पर और विदाउट एनी मेडिकल ट्रेनिंग ईडा वॉज पावरलेस टू हेल्प। और ये लोग क्या किए थे, सिर्फ ईडा को लेके जाके हेल्प करवाने के लिए सोचे थे, और जो ईडा स्कर्डर थे वो उस टाइम डॉक्टर ही नहीं थे। तो इसलिए क्या हुआ, उनको जो 3 औरतें थे वो मरीजों को हेल्प करना नहीं आया था। तो उसके बाद क्या हो गया, वो तीनों के 3 वुमेन मर गए थे। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर, उसके बाद ईडा ने बहुत सारा प्रेयर किया। ईडा फेल्ट दैट गॉड वाज कॉलिंग हर टू सर्व द वुमेन ऑफ इंडिया। और इन्होंने ये तय किया और इन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर उनको भारत में इसलिए बुला रहे कि यहाँ पे आगे बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए करके सोचते हैं। सो Ida felt that God was calling her to serve the women of India. So she returned to the US to become a doctor. फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका गए थे और वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो गए थे। So graduating in the first class that accepted women at Cornell Medical College. So graduating first class में उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और she was accepted women at Cornell Medical College. Returning to India in 1900, Dr. Ida Scudder had just $10,000 to begin her work. जब वो भारत आए थे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ $10,000 के पैसे ही थे। So this was a gift from a man who wanted to memorialize his deceased wife. और ये जो पैसे था और वो भी एक व्यक्ति था, उन्होंने डोनेट किया है। तो डॉक्टर ईडा इमीडिएटली इन्होंने क्या ओपन किया और 1 बेड क्लिनिक गिविंग मेडिकल असिस्टेंस टू लोकल वुमेन। तो इन्होंने क्या किया, उस पैसे को रख के एक सिंगल बेड क्लिनिक को इन्होंने शुरू किया है। तो मेडिकल असिस्टेंस टू लोकल वुमेन हु हैड नो अदर प्लेस टू टर्न। इनको कहीं जाके मदद लेने के लिए कुछ भी इनके पास जगह नहीं थे और इनके पास हेल्प नहीं थे। तो ये जो वुमेन के लिए ईडा ने एक 1 बेड क्लिनिक शुरू किए थे। Who had no place to turn. But by 1902, the 40-bedded Mary Tapper's Gill Memorial Hospital was opened. और क्या हुआ, 1902 में क्या हो गया, 40 बेड वाले एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल को इन्होंने ओपन कर दिया। बिगनिंग द रियलाइजेशन ऑफ इडा's विजन दैट वुमेन शुड हैव द सेम एक्सेस टू क्वालिटी एंड compassionate health care that men did, regardless of religion or the ability to pay for it. She dedicated her life to this idea and her legacy continued to inspire people to join her. The women should have the same access to quality and compassionate health care that men did, regardless of religion or the ability to pay for it. She dedicated her life to this idea and her legacy continues to inspire people to join her cause even to this very day. The tiny clinic and then the Skinnell Hospital have grown into today's superb medical and educational institution, the Christian Medical College. हम बोले थे बिगनिंग में ही कि पहले इसका नाम क्या था, स्किनल हॉस्पिटल, एंड बहुत छोटा था और अभी क्या हो गया, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया है, एक बहुत सा बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया है। तो over 2 million patients are served annually and 1,000 doctors, nurses and other medical professionals are trained each other.
Individuals come all over India, South Asia and rest of the world in search of the best care. So जो CMC होता है वहाँ पर जो दुनिया में के कोने से बहुत सारा लोग आते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत फेमस हॉस्पिटल है. Delivered with honesty, fairness, compassion and integrity. Today CMC's excellence continues with advances in research and a continually evolving curriculum aiming at transforming India's promising medical students into creative and compassionate healthcare providers. और यहाँ पे जो जो 20 ईयर जो 20 साल के एक टीनेजर का जो मन में जो बात था उसने और वो छोटे से बात ने कितना बड़ा एक चेंजेस को लेके आ गया है, तो वही हम देखते हैं. जैसे ही मदर टेरेसा का भी ऐसे जैसे हमारे कॉलेज में भी लाइब्रेरियन है और लाइब्रेरी भी है, वैसे एक लाइब्रेरियन को कैसे हम एक रिक्वेस्ट यानी कि कुछ बात के बारे में लेटर लिख सकते हैं. एज यू नो, जब लेटर एक लाइब्रेरियन को लिखते हैं या फिर स्कूल प्रिंसिपल को लिखते हैं, टीचर को लिखते हैं, सबको जब हम लिखते हैं इट इज़ ऑलवेज अ फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल कभी भी नहीं होता है. और ये भी जो लेटर होता है इसको भी हम फॉर्मली लिखते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग. फर्स्ट वहाँ पे फ्रॉम आता है एंड राइट साइड में डेट, एंड इफ़ यू वांट डे आल्सो यू कैन पुट, जैसे कि मंडे ट्यूसडे कुछ भी आप वहाँ पे डाल सकते हो. और उसके बाद XYZ जो नेम होता है वहाँ पे स्पेसिफिकली आप नेम नहीं डालोगे, तो क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप हकीकत में लेटर लिखते हो तब आप नाम लिख सकते हो, पर जब ऐसे मॉडल लेटर में सब हम नाम नहीं लिखेंगे. और क्लास 10C और यहाँ पे उनका एड्रेस कहाँ से लिख रहे हैं. और 2 द लाइब्रेरियन को लिखते हैं एड्रेस हैदराबाद. सब्जेक्ट रेमिटेंस ऑफ लाइब्रेरी फाइन, तो फाइन कुछ लगा है उसका रेमिटेंस के लिए लेटर लिखते हैं. रिस्पेक्टेड मैडम और सर. XYZ का मतलब नाम है. स्टूडेंट ऑफ 10C has borrowed 3 books from the literary section of the school library on the 15th February 2018. However, I could not return them back in the stipulated time of 15 days after borrowing. I have now been delayed by another 15 days and the late return fee has been piling up. I could not return the books as we have shifted our house suddenly and most of the things were misplaced. It has taken me quite some time to look for it and bring it back. However, I am glad that the books are in the good condition and no damage has occurred to any of the books. Please consider my situation as a genuine reason and remit my library fine. इसका जो फाइन लगा है लाइब्रेरी में, इसको क्या करना है, रेमिट करना है, यानी कि फ़ाइन को ओमिट करना है, फ़ाइन नहीं लेना है करके वो उनका जो जेन्यून रीज़न है, जो हकीकत में जो रीज़न है उसको एक लेटर के द्वारा उन्होंने लिखा है.
So kindly consider my request as an apology too. एक सॉरी के टाइप में भी ये लेटर इन्होंने लिखा है, और यहाँ पे थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ क्लास 10C। और यहाँ पे ये लेटर तो कम्प्लीटली फॉर्मल ही है। सो नेक्स्ट लेटर है प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग फॉर लीव। ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಮನಿ ರೆಡಿ ಕಾಟಿ ಏ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಗಿರಿಗಪ್ಪ So from Anmol Sharma, class 8, Holy Child School, Kolkata, क्या लिखते हैं? Is writing a
requesting letter of leave to the principal. एंड अगेन यहाँ पे टू एड्रेस किसको लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल, होली चाइल्ड स्कूल, कोलकाता. सब्जेक्ट का मतलब नो रीज़न. सीकिंग लीव फॉर 5 days. Respected principal sir or madam, I, Anmol Sharma, a student of class 8 studying in your school, like to state that I am suffering from a serious fever. और ये जो स्टूडेंट है इसको बुखार हो रहा है, तो इसके लिए ही इज़ राइटिंग अ रिक्वेस्ट लेटर टू द स्कूल प्रिंसिपल टू सीक लीव फॉर 5 days. The doctors in our locality are unable to find out what actually the disease is and what is the cause for it. So local doctors has recommended me to go to Mumbai to a reputed hospital. So therefore I request you to please grant me leave for 5 days. So therefore I request you to please grant me leave for 5 days, that is from 2nd of December to 7th of December. I shall surely cope up with the missed classes and assignments. Looking forward for your positive reply. और यही है रिक्वेस्टिंग लेटर. एंड फर्स्ट लेटर हम देखे हैं लाइब्रेरियन को जो लेटर लिखते हैं उसने उसको हमने देखा है. और सेकेंड लेटर हम देखते हैं जो एक लीव लेटर लिखता है एक स्टूडेंट उसके स्कूल प्रिंसिपल के लिए. और एक्सरसाइज नंबर 12, रिपोर्ट राइटिंग. व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ structured document that precisely describes and examines an event or occurrence. A report is a document that is short, sharp, and specially written for a particular audience and purpose. So, yeah, report writing क्या होता है? It is a creation of a structured document जो एक सम इंसिडेंट हो गया है उसके बारे में लिखना ही रिपोर्ट राइटिंग होता है. प्रिसाइसली डिस्क्राइब करता है. एग्जामाइंस एन इवेंट और अकरेंस, एक इवेंट या फिर अकरेंस को वो उसके बारे में बोलता है. रिपोर्ट इज़ ए डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ शॉर्ट, छोटा होता है, शार्प होता है, एंड स्पेशली रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस. छोटा सा होता है, शार्प होता है, यानी कि टू द पॉइंट होता है, और ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑडियंस या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को लिखा जाता है. और यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे. G.D. Gionka School celebrated the Independence Day with great enthusiasm and patriotic fervor. On the morning of August 14, 2018, our students presented handmade greeting cards and tricolor flag badges to the senior management functions of the school. The cultural program at school commenced with everyone singing Vande Mataram, followed by flag hoisting by the chief guest, Miss Indubala Sharma, the district magistrate. Spirit of freedom and nationalism as well exhibited by the students as well as the teachers through a spectrum of patriotic poems, speeches, quiz on freedom fighter songs,
and task. செக்ஷன் போடு எனக்கு தெரியவே தெரியாது செக்ஷன் போறாங்க விண்டர்ல பனி காத்துக்கு பயந்து நிக்கிற மாதிரி இப்ப வெயில் காலத்துல அனல் காத்து அதே அனல் காத்து நாங்க போய் 10 முக்கால் சேர்ந்தேன் வந்து தண்ணி காலத்துலி ஓடிட்டேன் உள்ள வீட்டுல போய் தண்ணி காலத்துக்கு தும்பட அப்படியே படுத்தேன் அப்போ எரிஞ்சு
चला नहीं उधर पर रेस्टोरेंट